Hello dear TYPSC. Now we will move ahead with our next point of our syllabus, that is T cell activation and T cell differentiation. Now we have already seen that the T cell are activated by the antigen presenting cell. They are activated through the MHC molecule. For the CD4 T helper cell, we need MHC one molecule, not MHC1, sorry, MHC2 molecule, and for the CD8 T cell, MHC2 molecule is MHC1 molecule is needed. So these activation things, it is a basic phenomenon. Now we will study in the detail that how the T cell gets activated, because in the immune system the T cell is a heart of immune system, because यही T cell होती है या T helper cell होती है जो ना कि सिर्फ अपने आप को एक्टिवेट करती है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ मैनी सेल्स. वो बी सेल को भी एक्टिवेट करती है, वो नेचुरल किलर सेल, वो मैक्रो अदर डेंड्राइटिक सेल मैक्रोफाजेस को, इन शॉर्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिवेट करती है, नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करती है. दैट इज़ वाई द T cells are the heart of the immune system. So their activation is very important, and so that they can differentiate properly. और टी सेल की अगर बात करें तो टी सेल पे मतलब टी सेल जो है कहीं ना कहीं ह्यूमरल इम्यूनिटी में एज वेल एज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, बोथ of them, it takes part in them, and indirectly it is a connecting link between them. So general features about the T cell activation. So हम just over look करेंगे what we have seen up till now. We have learned that the MSC molecule is been recognized by the T cell receptor of the T cell, and due to the T cell receptor and the MHC molecule interaction, the T cell will get activated, it will get proliferated, that means it will get it will travel, and then it will make expansion, clonal expansion, it will get differentiated into the memory and the effector T cell. Memory T cell means they don't have that they keep that memory of the antigen, and effector T cell means they get again divided into the more T cell, more effector T cell and more memory T cell. So this is the function of the T cell. Then मतलब कि okay, I will show you. One T cell gets divided into effector T cell and memory cell, then this effector again gets divided into effector and memory, and this process continues. This is the basic mechanism. Now the T cells have that ability that they recognize the antigens in the lymphoid organs. That means they have that ability that they can recognize the antigens in the lymphoid system, because lymph node में हमारे जो T helper cells है वो रहते हैं, या T cells रहते हैं, नाइव T cell जो इमैच्योर होते हैं, और वहाँ पे जब ये जो मैक्रोफाजेस हो या डेंड्राइटिक सेल हो, वो जब आते हैं प्रेजेंट करते हैं एंटीजन, दे गेट एक्टिवेटेड, दिस टी सेल इन द लिम्फ नोड गेट्स एक्टिवेटेड. देन दिस पेरिफेरल नॉन lymphoid tissues actively perform their effector function. Now the activation of the T cell requires the recognition of antigen displayed on the antigen presenting cell, co-stimulated and the site. मतलब जो एक्टिवेशन होता है टी सेल का, पहले तो उसके लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को पहले एंटीजन रिकग्नाइज करना पड़ेगा, फिर वो टी सेल को बताएगी, फिर को स्टिमुलेटर्स और साइटोकाइंस की मदद से टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे. और जो नाइव टी सेल है, नाइव यानी कि इमैच्योर टी सेल है, उनको एक्टिवेशन करने के लिए दे रिक्वायर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. सो दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ द टू सिग्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन. फर्स्ट जो है एमएचसी पेप्टाइड, और जो टीसीआर मतलब टी सेल का जो रिसेप्टर है टीसीआर CD3 कॉम्प्लेक्स होता है, वो इन दोनों का इंटरेक्शन, मतलब लाइकवाइज, मतलब यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर्स है CD3 रिसेप्टर, ओके, इट इज़ अ प्रेजेंट ऑन द टी सेल, उसका और एंटीजन के थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का इंटरेक्शन, लाइक मैक्रोफाज, ओके फॉर एग्जांपल, तो उसका इंटरेक्शन होना जो जिस पे एमएचसी प्रेजेंट है, इन दोनों का इंटरेक्शन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकंड सिग्नल क्या होता है, जब CD22 जो है 28 जो है टी सेल पे CD28 होता है,
सो CD28 का इंटरैक्शन होना with the B7, okay, on the antigen presenting cell, ओके इन दोनों का इंटरेक्शन इज द को स्टिमुलेशन, ओके ये को स्टिमुलेशन है बिकॉज इसके अलावा मतलब ये जो होता है ना पहले इंटरेक्शन, ये अगर मतलब बस MHC और टी सेल रिसेप्टर का, तो ये पक्का इंटरेक्शन नहीं होता है। इससे जो होता है वो एनर्जी डेवलपमेंट होता है, मतलब एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है इससे। सो दैट इज़ वाई वी नीड द को स्टिमुलेशन। तो यहाँ पे इन द डायग्राम यू कैन सी कैसे एक्टिवेट होता है। तो पहले क्या होता है, पहले तो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ओके उस पे एंटीजन अभी MHC मॉलिक्यूल ने प्रेजेंट, लाइक अभी एंटीजन एंटर हुआ तो उसने एनगल्फ किया, फैगोसाइट किया और वो MHC पे प्रेजेंट किया, ओके ये MHC पे प्रेजेंट किया, वो गई लिम्फॉइड ऑर्गन में, लाइक लिम्फ नोड में। तो लिम्फ नोड में जाने के बाद वो वहाँ जो नाइव टी सेल्स है मतलब इमैच्योर सेल है उनसे जाके इंटरेक्ट की ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने। अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल का इंटरेक्शन हो चुका है, ओके तो ये कहाँ पे हो रहा है, लिम्फ नोड में। नाउ यहाँ पे इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है यूजिंग द टी सेल रिसेप्टर ऑफ द टी सेल एंड दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कौन है, MHC, ओके अभी अगर CD4 है तो MHC1, ओके और CD8 है तो MHC2, तो यही इंटरेक्शन होता है। नाउ यहाँ पे जब इंटरेक्शन हुआ, ये पक्का इंटरेक्शन नहीं है टी सेल का और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसका। नाउ इसको पक्का इंटरेक्शन होने के लिए वी रिक्वायर्ड सम को स्टिमुलेशन। अब ये को स्टिमुलेशन क्या है, ये यहाँ पे हमारा जो टी सेल है इस पे जो प्रेजेंट है CD28 वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो बाइंड करेंगे विद द B7, ओके ये दोनों का फिर इंटरेक्शन होगा। ये इंटरेक्शन होने के बाद क्या होगा, एक और सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा और इससे दूसरे प्रोसेस, अब वो कौन से होंगे वी आर गोइंग टू सी, सॉरी सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। तो ओके सो दिस सिग्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिग्नल हुआ मतलब यहाँ पे CD28 B7 का बाइंडिंग हुआ, उसके बाद ये जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये क्या करेगी, फिर ये कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेगी लाइक इंटरल्यूकिन, ओके इंटरल्यूकिन 2। तो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगी टी सेल। वो क्या करेगी, वो जो इंटरल्यूकिन 2 है उसका रिसेप्टर प्रोड्यूस करेगी। उसका रिसेप्टर यहाँ पे ये कब होगा, जब ये इंटरल्यूकिन इस पे बाइंड होगी, लाइक इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस होगी, वो किसी और रिसेप्टर पे बाइंड होंगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये उस पे बाइंड हो गई तो उसकी वजह से क्या, सॉरी नॉट दिस, सॉरी आई एम रॉन्ग। सो यहाँ पे क्या होगा, पहले इंटरल्यूकिन 2 जो है वो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिलीज करेंगी, ओके सो इट इज़ इंटरल्यूकिन 2, okay now this interleukin 2 will activate this T cell to produce the receptor। वो रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करेगी फॉर द इंटरल्यूकिन 2 और खुद भी एक्टिवेट होके इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करेगी, वो भी इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगी। मतलब क्या होगा, यहाँ के इंटरल्यूकिन भी एक्टिवेट होंगे और ये खुद भी इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगी जो यहाँ पे बाइंड होंगी। अब ये रिसेप्टर पे मतलब यहाँ पे कुछ सिग्नल यहाँ पे इन इंटरल्यूकिन 1 जो इंटरल्यूकिन 2 जो है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने प्रोड्यूस की, उसके वजह से टी सेल जो है वो एक्टिवेट होंगी, उसमें कुछ चेंजेस होंगी, जेनेटिक चेंजेस, प्रोटीन प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से उस पर इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर आ जाएगा, ओके और ये रिसेप्टर फिर क्या करेगा, ओके दिस इज इंटरल्यूकिन 2, इस पे अभी इंटरल्यूकिन इज गोइंग टू बाइंड, ओके सो ये इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर जो है वो क्या करेगा, इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द one more type of the factors, one more type of the cytokines, okay co-stimulatory cytokines। now इसके वजह से क्या होगा, और साइटोकाइंस रिलीज होंगी और जो दूसरे सेल्स है तो दूसरे मैक्रोफाजेस है वो एक्टिवेट होंगे। देन ये खुद भी जो है ये सेल जो टी सेल है ये खुद भी डिवाइड होगी इनटू द इफेक्टर सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स, ओके मेमोरी टी सेल्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर ये इफेक्टर सेल और डिवाइड होगी और मेमोरी सेल्स और डिवाइड होंगी, मेमोरी सेल विल बी स्टोर्ड एज अ मेमोरी। तो ये सब होता है बिकॉज टी सेल आर द हार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। नाउ हियर यू कैन सी
जो CD8 है वो क्या करते हैं, CD8 जो टी सेल होते हैं, जो टी हेल्पर टाइप के टी सेल्स होते हैं, जो को-स्टिमुलेटर्स, उन पे को-स्टिमुलेटर्स जो होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे, और CD8 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी इनडायरेक्टली एक्ट होते हैं। मतलब क्या, CD8 का अलग एक्टिवेशन होता है, CD4 का अलग एक्टिवेशन होता है। MHC1 की वजह से CD4 एक्टिवेट होते हैं, MHC2 की वजह से CD8 एक्टिवेट होते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जब टी सेल एक्टिवेट होंगे तभी बाकी सेल, लाइक यही टी सेल, इफेक्टर टी सेल फिर बी सेल के पास जाएंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे, वो मैक्रोफाजेस के पास जाएंगे, उन पे एक्टिवेट होंगे। तो ये सब प्रोसेस होने के लिए पहले टी सेल को खुद एक्टिवेट होना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट होना पड़ता है, और ये किसकी वजह से होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की वजह से। तो दिस इज अबाउट द टी सेल एक्टिवेशन एंड डिफ्रेंशिएशन यूजिंग द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इस वे में, और ऑलरेडी आपको पता है कि टी सेल जो होती है उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनको पता है कि सेल्फ मॉलिक्यूल कौन से है, तो ये वही मॉलिक्यूल को जाके बाइंड होते हैं जो नॉन सेल्फ होते हैं। अब नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल कौन है, एंटीजन। एंटीजन किस पे प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे। तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब टी सेल के पास आता है वो तो अपनी अपनी घूम रही होती है अपने एरिया में, लाइक लिम्फ नोड में, बट ये जब आते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो एक्टिवेट हो जाते हैं टी सेल, वो उनको जाके बाइंड करते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द antigen presenting cell and the T cell activation and differentiation. I hope you have understood. In the next lecture we are going to see the more detailed functions of these T cells, like cytotoxicity ho या antigen antibody dependent cytotoxicity ho. We are going to learn them. Thank you. Sorry.